So, good morning to one and all. Today, we very well know that after this session, there will be difference in attitude, in the perspective towards the, I can say, the lacuna or the weakness, whatever we have regarding English language, particularly spoken English. I first of all welcome all dignitaries on the stage, off the stage, my dear students, and bow my head towards respected founder president, Honorable Shraddheya Mataji, Radha Devi ji Goenka. The grace, the blessings of Mataji is visible in each hook and corner of our campus, and due to her blessing, each and every activity, each and every person is ready to work with full of energy and full of positive attitude. So, I request, first of all, the dignitaries on the stage to pay humble tribute by offering flowers to the pious memory of the founder president, respected Mataji, and initiate this noble cause of the program which here we are gathered, and the name of the title of the program is Don't Let English Hold You Back in Life. Honorable Mataji has planted this. Honorable Mataji has planted this sapling, namely Radha Devi ji Goenka Mahila Mahavidyalaya, College for Women, what we say. And today we see that the efforts of many has converted this sapling into a graceful, a gigantic, we can say a great tree under which many students, many girl students are acquiring knowledge, are acquiring meaning to their life. Our institution, Honorable Dilip Rajji Goenka, the president of the institution, always try to initiate various kinds of initiatives to bring difference in the life of girl student, as the motto of our RDG, of our institution, is to create difference, to create, we can say, betterment of life from the perspective of economic, from the perspective of finance. And holistic education is our purpose. So, today we are all gathered here to take an insight into the subject for which we are gathered. Our subject of this session is Don't Let Spoken English Hold You Back in Life. We all know English is a globalized language, and in this global era, communication skill has become primemost need of the time. And if we explore ourselves, if we develop various types of skills regarding the language, the spoken language particularly, then it is the great asset of our personality. The Department of English, along with the institution, always try to, we can say, remove the weaknesses, remove the all impurities of our personality in the matter of, we can say, language speaking. And one such effort
is, we can say, today's event. English plays vital role, as you all will know, in our day-to-day life as well as in our professional life. Miss Anushri Goenka, Honorable Miss Anushri Goenka, is here with us today to speak with you, to discuss her valuable views, to share her acquired knowledge, which she has very, we can say, effortlessly, or we can say with great effort, she has accumulated this knowledge which she wants to share with you. So, I request Dr. Sanjay Vite sir to, in fit of, we can say, excitement that my student should get knowledge directly, I forgotten the main part of the program, that is welcome the guest. So, first of all, may I request Honorable Principal Dr. Charushila Rumale ma'am to welcome our chief guest, Honorable Miss Anushri Goenka, with a bouquet, and great claps of our students. After that, I request Ambadas Ji Pandey sir to welcome Honorable Secretary Bharatiya Seva Sadan Alok Kumar Ji Goenka. I request the head of the Department of English, Dr. Shalini Bang ma'am, to welcome Mrs. Sadhana Goenka. I request again Dr. Bang ma'am to welcome little angel one, that is, I don't know the name actually. I request Vite sir to welcome our Honorable Principal as well as Vice Principal Ambadas Ji Pandey and Honorable Charushila Rumale ma'am with a flower. Welcome ma'am welcome all dear dignitaries. So, after welcoming, it is very necessary that I humbly beg my pardon that I have forgotten the important part of the program. So, after that, I request Dr. Sanjay Vite sir to introduce our Honorable resource person of today's session, that is Honorable Anushri Goenka. Thank you so much, sir. Very good morning to the honorable dais and all the present over here. First of all, I would like to welcome you all for the special sessions which we are going to start. Now, before I introduce our speaker, I want to start by sharing something that I think will immediately make you all feel connected to her. Anushri Goenka is a girl from Akola, just like many of you sitting here today. She grew up walking the same kinds of streets, attending schools here, and dreaming of how far she could go. And today she is here, not just as a guest, but as someone who was once exactly where you are today. Anushri has always been a bright student. She did her early schooling right here in Akola and then continued her high school education in a prestigious Mayo College in Ajmer, one of the India's top boarding schools. From there, she pursued computer science engineering at the Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology in Gandhinagar and later earned her MBA from Indian Institute of Management, Ahmedabad.
one of the most respected business schools in the country. With over 15 years of the diverse profession across industries, from steel to apparel, banking to media, and eventually found her true calling in the world of education and technology. She is the founder of the True Education Startup. Her first startup, Spark Studio, was an online platform offering extracurricular courses in music, arts, and communication for children. And now she is building a Sparky AI, an AI first app focused on spoken English fluency, helping people become more confident, more expressive, and ready to grab the opportunity life offers. Her work has focused on empowering people, especially young learners, to break free from hesitation, build confidence, and speak up. And today she is here to talk to us about something that many of us struggle with, the barriers that spoken English fluency can create in a life. And more importantly, how we can overcome it. So let's give a warm welcome to someone who is not only accomplished but also from our very own Radhadevi Goenka family. So without wasting time, I know that each and everyone out of over here is really very eager to listen her. So I take a leave from you. Thank you so much. I invite Honorable Anushri Goenka with these words to embark a journey of insight that will take you upon the next level. Ms. Anushri Goenka. Hello, check. Hello. 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 Namaste to everybody. It is a great honor for me कि मैं दादी जी के बनाए हुए ये great institution में आज as a guest आई हूँ. So I'm very honored that you have given me this opportunity to talk on stage and to meet everyone here. This is not a session जहाँ पे ये performance नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ बोलूँगी और आप सुनेंगे. मैं आपसे बात करने आई हूँ तो आई वुड लाइक वेरी मच कि यहाँ पे जो सारी छात्राएं हैं आप जब भी मुझे रोक के कुछ बोलना चाहें मैं कुछ क्वेश्चन पूछूँ तो आप जवाब दें. आप जितना इंटरेक्ट करेंगे मेरे साथ उतना ही आपके लिए यूजफुल है, उतना मैं जो करने आई हूँ मेरा जो एम है वो भी मीट होगा अगर हम आपस में बात करेंगे. तो ये फॉर्मल सेशन नहीं है, मुझे आप ऐसे ही समझे कि मैं आपकी दीदी हूँ या मैं आपसे थोड़ी बड़ी हूँ, पर मैं आपके जैसी हूँ. So let's keep this interactive and please stop me. आप हाथ उठा सकते हैं अगर आप डायरेक्टली बोलना चाहें तो फिर बोल सकते हैं. ठीक है. So today's session, like we've discussed, is don't let English hold you back in life. आप लोग में किसी को ऐसा लगता है कि इंग्लिश आपको होल्ड बैक कर रहा है, आपको कुछ करने से रोक रहा है, कि ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं? आप हाथ हिला सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, पर आप जब तक नहीं बोलेंगे तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे समझ नहीं आएगा कि मैं किससे बात कर रही हूँ और मैं किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही हूँ. तो क्या आपको लगता है इंग्लिश का कुछ प्रॉब्लम आता है? कहीं भी आता है, चाहे आपको पढ़ाई में आता है, आपके क्लास में आता है, पेपर लिखने में आता है या कहीं और आता है, दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने में, कुछ समझने में, आप इंटरनेट में कुछ देख रहे हो, कहीं भी आपको ऐसा लगता है? अगर लगता है आपको ये प्रॉब्लम आता है तो ये सेशन का काम है, नहीं तो ये सेशन का काम नहीं है. कुछ लोग सर हिला रहे. धीरे धीरे हम वार्म अप हो जाएंगे, इतना टाइट मत बैठिए अपने सीट्स में. एक बार खड़े हो जाओ, आप लोग सब खड़े हो, ठीक है? और सब ऐसे ऐसे हाथ हिला लो, थोड़ा सा मत करो, थोड़ा टर्न कर दो सब. अब बैठ जाओ, ठीक है? लिटिल मोर एक्टिविटी वी विल हैव. तो मैं पहले आपको जानना चाहती हूँ, वन वी हर्ड इंग्लिश का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है और समझेंगे, लेकिन यहाँ पे कॉलेज के
कितने लोग हैं आप हाथ उठाइए, क्योंकि स्कूल के भी बच्चे आए हैं। ओके, बहुत सारे कॉलेज के हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स, टीचर्स नहीं, स्टाफ में नहीं कोई भी। ओके, और स्कूल के कितने बच्चे हैं? अच्छा, और कौन सी क्लास के बच्चे हैं स्कूल के? 10th, जोर से बोलो, चिल्ला के। 9th और 10th भी है? अच्छा, और जो कॉलेज के बच्चे हैं, आप लोग कौन सी स्ट्रीम में हैं? क्या डिग्री कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे कोई बताइए। बीए और बीए फर्स्ट ईयर, और कुछ बीएससी और 12th स्टैंडर्ड आर्ट्स, बीकॉम बी। ओके, ठीक है, चलो फर्स्ट ईयर मोस्टली, कोई आगे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे नहीं? ठीक है, ओके। तो अब मुझे थोड़ा समझ में आया। अब आप मुझे बताइए कि आप जिसको भी बोलने का इच्छा हो, आप खड़े होकर प्लीज बोलिए, आप आगे क्या करना चाहते हैं? जैसे कॉलेज आपकी हो जाएगी, अभी 2 साल 3 साल आप ग्रेजुएट हो गए, आगे आपकी ड्रीम्स क्या है? स्कूल वाले बच्चे भी बोल सकते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? या आपके लाइफ में कोई रोल मॉडल है, आपके कोई बड़े कजिन हैं, आपके कॉलेज के एलुमनाई हैं जिनको आप रिस्पेक्ट करते हो, आप सोचते हो कि मैं भी वैसे बनूं, ऐसा आप कुछ मुझे बताना चाहेंगे? कौन बताएगा? एंड में प्राइज मिलेगा, जो ज्यादा बताएगा उसको प्राइज मिलेगा। ओके, I want to pursue a degree in psychology. you want to pursue a degree in psychology, you want to become a psychologist? You know somebody who's a psychologist? I follow, but I watch videos, but not read. Okay, great. Anybody else? Yes, ma'am. English teacher. You want to be an English teacher. Great, that's very good. So what I'm doing today, you will be doing. ठीक है, how many years later? 2 years later? 3 years later? 2 years later? Okay. Anybody else? He depends मध्ये जाणं sir. Okay, डिफेंस मध्ये जाना। ओके, ठीक है, मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आया। अगर और लोग बोलेंगे तो मुझे और समझ में आएगा, ये सेशन आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाई डज इंग्लिश मैटर, राइट? इंग्लिश एक भाषा है, ऐसी बहुत सारी भाषा है। जैसे अगर मैं भी आपको मराठी बोल के बताती हूँ, ठीक है, मला मराठी थोडी थोडी येते, जास्ती येत नाही। आता मी बोलणारा प्रयास करतो, ग्रामर सगळं गलत होतो, राईट? मी नाही बोलू शकते, पण मला काही शर्म आवत का नहीं, मैं पता नहीं कौन सा लैंग्वेज मिक्स करूँ। शर्म आनी चाहिए क्या मुझे? क्या मुझे लगना चाहिए इतने सारे लोग बैठे, मैं ऐसे भाषा बोल दूँ जो मेरे को आती नहीं है, मेरे को बहुत शर्म आई क्या? नहीं। अब ऐसे भाषा स्पेनिश है, फ्रेंच है, जापानीज है, चाइनीज है, मैं इतनी जितनी मैं मराठी बोलती हूँ उसके थोड़ा सा भी नहीं आता मेरे को बोलना, लेकिन मेरे को कोई भी फर्क पड़ता है क्या? मेरे को शर्म नहीं आती, इट्स अ स्किल। मेरे को कुछ आता, मेरे को कुछ नहीं आता। जैसे मेरे को साइकिल चलाना आता होगा, लेकिन मेरे को शायद गाना गाना नहीं आता, राइट? लैंग्वेजेस भी ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आपको नहीं आती। आप अंग्रेज़ी कंट्री में पैदा नहीं हुए, आपके घर में सब अंग्रेज़ी में बोलते नहीं हैं, तो क्यों आनी चाहिए आपको अंग्रेज़ी? कोई ज़रूरी है आनी चाहिए? ये दुनिया की जो रिक्वायरमेंट है कि आनी चाहिए, ये शायद गलत है कि अंग्रेज़ी को बाकी सारी लैंग्वेजेस से अलग क्यों ट्रीट किया जाता है। सबको लगता है कि इंग्लिश तो आनी चाहिए, इंग्लिश नहीं आए तो लोगों को थोड़ी हेजिटेशन होती है। आप किसी के सामने गलत इंग्लिश बोलते हो तो आपको थोड़ा सा लगता है डर कि कोई मेरे ऊपर हंसेगा, वो क्या सोचेगा कि मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा, राइट? तो वो इसीलिए है क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, और इंडिया में इंग्लिश का और भी ज़्यादा एक स्ट्रेस है लोगों के माइंड में। जैसे आप यूरोप में जाओगे, यूरोप में, फ्रांस में, जर्मनी में, हाँ ऊपर जाओ, तो फ्रांस में, जर्मनी में
जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है उनको कोई ऐसी हेजिटेशन, हाँ नहीं दिस इज, तो वहाँ पे लोगों को इतनी खास शर्म नहीं आती। इंडिया में एक इसकी हिस्ट्री का कारण है कि जब ब्रिटिश हम पे रूल करते थे, हमने इंग्लिश को रूलर्स की लैंग्वेज जैसे देखा है उस टाइम से। तो इंग्लिश के साथ एक वो हवा बन गया है कि जो बड़े लोग होते हैं, जो रूलर्स होते हैं, जो हमसे कुछ अलग लेवल के होते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं। तो ये जो अपने दिमाग में बैठ गया है, इस चीज़ को लेकर हमको सिर्फ स्किल नहीं आने की बात नहीं होती, हमको उसका डर लगता है। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, मैं आपको इंग्लिश सिखा नहीं सकती और आपको कोई भी इंग्लिश नहीं सिखा सकता। मैडम मुझे डांटेंगे कि मैं इंग्लिश HOD के सामने बोल रहे हैं, आपको कोई इंग्लिश सिखा नहीं सकता। बट उसका ये है कि आपको इंग्लिश कोई सिखा नहीं सकता, आपको सिर्फ उसके टूल्स दे सकता है, आपको उसके सिर्फ एनवायरनमेंट दे सकता है, आपको सीखनी होगी, ठीक है। तो इस सेशन में ये इंग्लिश क्लास नहीं है, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं सिखाने की कोशिश करूँगी, बट हमको ये कोशिश करना है कि जो हमारे माइंड में ब्लॉक है, जो हमको डर है, जो हमको शर्म है, वो हम ख़त्म करें। और इसको अब सॉल्व कैसे करना है, ये होना तो नहीं चाहिए इंग्लिश का ऐसा क्यों है कि इतनी बड़ी बात है, बट ये है, ठीक है। तो ये हमारी रियलिटी है, हम इस रियलिटी में रहते हैं। इस दुनिया में ये सच है कि इंग्लिश से अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं और इंग्लिश से हर तरह की अपॉर्चुनिटी खुलती है, चाहे वो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी हो। आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, आप उसके लिए आगे डिग्री करेंगे, आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, आप उसके बाद कोई टीचर बनना चाहते हैं, आप अच्छे स्कूल में टीचर बनना चाहोगे, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, वहाँ पे आप क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे, आप ऑफिस में जॉब करो, कहीं ना कहीं इंग्लिश हर जगह रिक्वायर्ड होता है। और आपकी प्रगति के लिए, फॉर यू टू डू बेटर इन योर लाइफ, आपका जो पोटेंशियल है आपको पूरा अच्छे से करने के लिए इंग्लिश आपकी लाइफ में ज़रूरी होता है। तो हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे और हम उसके आगे बढ़ेंगे कि अब यहाँ से हम इसको इम्प्रूव कैसे करें, ठीक है। अब अगर जो भी यहाँ पे आगे जॉब करना चाहते हैं या अपना खुद का बनना चाहते हैं, 90% एम्प्लॉयर्स, ये इंडिया का नंबर है, हर कंट्री का हर कंट्री का नंबर अलग है। इंडिया में 90% एम्प्लॉयर्स इंग्लिश ज़रूरी समझते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। आज मैं मेरे पापा से बात कर रही थी, वो उनका ऑफिस में अकोला में है, उनके ऑफिस में कई लोग काम करते हैं जो इस कॉलेज से या इस जैसे दूसरे कॉलेजेस से ग्रेजुएट हुए हैं। मैं उनसे पूछ रही थी कि वो किस टाइप का काम करते हैं और वो इंग्लिश उनको ज़रूरी है कि नहीं है, कैसे करते हैं। और अगर जो काम करते थे अगर वो इंग्लिश ज़्यादा अच्छी बोलते तो उनकी सैलरी में कितना फ़र्क पड़ता। तो उनका रिस्पॉन्स था कि 40 से 50% हायर सैलरी मैं देने को रेडी होता अगर ये जो मेरे साथ काम करने वाले हैं अगर वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते और जो उसके साथ जो काम करने को वो पॉसिबल होता है उनके लिए अगर वो कर पाते। सो जॉब में तो 100% रिक्वायर्ड है, 90% एम्प्लॉयर्स ऑलरेडी नीडेड और ये वाइट कॉलर जॉब्स में ज़्यादा है। मेरी आवाज़ आ रही है अच्छे से? सर ऑडिबल? तो जो 90% था उसमें आप समझिए वाइट कॉलर में ऑलमोस्ट 100% है। वाइट कॉलर के अलावा क्या होता है, जैसे फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, एग्रीकल्चर में लोग काम करते हैं, उसमें थोड़ा सा कम होता है। लेकिन आप कोई भी ऑफिस टाइप के सेटिंग में काम करें, हेल्थ केयर में काम करें, प्रोफेशनल कोई भी सेटिंग में काम करें, वहाँ इंग्लिश ज़रूरी होता है। ये कुछ स्टैट्स हैं, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, कुछ स्टैट्स हैं। रिसर्चर्स ने बताया है कि फ्लुएंट इंग्लिश से 40% तक, ये बहुत बड़ी लेवल की स्टडी है तो उसमें हर एज के, हर डिग्री के, आपने BA किया हो, BCom किया हो, इंजीनियरिंग किया हो, उन सब का डेटा मिला के ये किया है रिसर्च। कम से कम 40 से 50% हायर सैलरी आपको मिल सकती है अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। नीति आयोग जो इंडिया का प्लानिंग कमीशन है, उन्होंने कहा है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं उनका नंबर 1 रीज़न फॉर नॉट गेटिंग जॉब, सैलरी तो आपको ज़्यादा मिलेगी जब आपको जॉब मिलेगा, तो जॉब मिलने के लिए भी उनका ये अंडरस्टैंडिंग है कि मोस्टली इंग्लिश फ्लुएंसी इज़ द रीज़न कि स्टेट यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को जॉब्स नहीं मिलेंगी।
ये एक दूसरी स्टडी है, इसमें तो बताया कि 80% हायर सैलरी इज रिलेटेड टू इंग्लिश फ्लुएंसी। और दूसरा मैं ये, आप लोग पता नहीं कितना फॉलो कर रहे हैं या थोड़ा जानते हैं थोड़ा नहीं जानते, चैट जीपीटी कितने लोगों ने यूज़ किया है? ओके, वेरी गुड। अब मुझे बताइए कौन सी भाषा में यूज़ किया है? इंग्लिश में कितने? ओके, और हिंदी में कितने? 1 2 3, और मराठी 2 3 4 5। सो 5 लोगों ने मराठी में, 3 लोगों ने हिंदी में, और मैं इंग्लिश का तो काउंट भी नहीं कर पाई, कम से कम 50। ठीक है, ऐसा क्यों है? जैसे अगर आप लोगों में इंग्लिश बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है या बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलते हैं, फिर भी जो 60 लोगों ने ट्राई किया चैट जीपीटी, उसमें से 50 लोगों ने इंग्लिश नहीं किया, राइट? तो एआई जो चीज़ है, अब मैं एआई का सेशन नहीं दूंगी, लेकिन एआई में आप समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो दुनिया के हर जॉब में, हर चीज़ में अब एआई घुस रहा है, राइट? चाहे वो पढ़ाई हो कि आप कोई चीज़ कैसे पढ़ते हैं, आप कोई नॉलेज हो, आपको कोई भी चीज़, आपको न्यूट्रिशन के बारे में समझना है, आपको हेल्थ के बारे में समझना है, आपको अपने प्रोफेशन रिलेटेड कुछ समझना है, आपको फिल्म बनानी है, आपको म्यूज़िक बनाना है, आपको ग्राफिक डिज़ाइन करना है, आप लॉयर हो, आपको लीगल वर्क करना है, हर टाइप के वर्क में आजकल एआई के सॉल्यूशंस आ रहे हैं। ठीक है, अब चैट जीपीटी जैसे एक हॉरिजॉन्टल टूल है, एक जेनेरिक टूल है, जो हर तरीके के, मैं यूज़ करती हूँ, आप यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं, सब लोग यूज़ करते हैं अलग अलग कामों के लिए, राइट? तो वो कॉमन है। बट ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो स्पेसिफिक हैं। आप फिल्म मेकिंग में जाना चाहोगे, वो पर्टिकुलर टाइप की फिल्म मेकिंग करने के लिए एक टूल होगा, लीगल काम करने के लिए एक टूल होगा, डॉक्टर्स के यूज़ करने के लिए एक अलग टूल होगा। ये सारे टूल्स हर भाषा में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो एआई से इंग्लिश की रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा बढ़ रही है। और एआई का क्या है ना कि आप जितना अच्छा इनपुट देंगे, आप जो बोलते हो एआई को, आप जितना अच्छा बोलोगे, जितना स्पष्ट बोलोगे, जितना स्पेसिफिक बोलोगे, उतना ही अच्छा उसका आउटपुट आएगा। सपोज मैं एक फिल्म बनाना चाह रही हूँ, मैं कुछ वीडियो बनाना चाह रही हूँ एआई से, मैं उसको एकदम बता सकती हूँ कि कैमरा का एंगल ऐसा होना चाहिए, लाइट यहाँ से होनी चाहिए, स्लोली जूम आउट होना चाहिए, जो भी आपको करना है आप वो डिस्क्राइब कर सकते हो। आप ये डिस्क्राइब कर सकते हो कि आपका जो बैकग्राउंड है वो कौन सी स्टाइल का है, ये कैसा लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि बहुत पुराने टाइम में शूट किया फिल्म पे, कि ऐसा लगना चाहिए साइंस फिक्शन टाइप का, एकदम न्यू एज चाइना में है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो आप जितना अच्छा डिस्क्रिप्शन दोगे चैट जीपीटी को या ऐसे एआई टूल्स को, वो उतना अच्छा आउटपुट देगा। और अगर ये काम करने का मेन तरीका बन गया, नॉलेज सीखने का मेन तरीका बन गया, तो आपकी जो एबिलिटी है उसको इंस्ट्रक्शन देने की, अगर वो इंग्लिश में देना है, तो वो ही आपका आउटपुट का क्वालिटी डिसाइड करेगी। जो अच्छे से नहीं दे पाया इंस्ट्रक्शन, उसका आउटपुट खराब है। अब आप बैठ के पेंटिंग कर रहे होते तो आपकी पेंटिंग की स्किल काम आती, ठीक है? अगर आप पेंटिंग बना रहे हो एआई से, तो आपकी इंग्लिश की स्किल काम आई, पेंटिंग की स्किल नहीं काम आई। तो इंग्लिश और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। और जो गैप है, जिनको आता है जिनको नहीं आता है, इन लोगों में जो गैप है वो गैप बढ़ता जाएगा। तो अब ये और भी ज़रूरी हो गया। आपको सबने बोला इंग्लिश ज़रूरी है, इंग्लिश ज़रूरी है, राइट? बट अगर आप 5-7 साल 10 साल बाद की सोचें, तो आप ये समझिए कि और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है इंग्लिश। ठीक है, दूसरा एक्सेस टू नॉलेज, आई थिंक वी डिस्कस्ड अ लिटिल अबाउट दिस, कि कोई भी टाइप की नॉलेज, इंटरनेट इज़ मच मोर इन इंग्लिश। ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स ऑफ नॉलेज, चाहे वो कुछ स्टडीज़ हो, रिसर्चेस हो, वेबसाइट्स हो, एआई टूल्स हो, वो इंग्लिश में। तो आपके खुद के सीखने के लिए, आपके खुद के कोई भी पार्ट में, ऐसे जरूरी नहीं कि सीखना सिर्फ डिग्री के लिए होता है या सीखना सिर्फ काम जॉब करने के लिए होता है। आप अगर हाउसवाइफ भी हैं, आप अपनी फैमिली चला रही हैं, तो भी उसमें बहुत कुछ आप दुनिया के बारे में सीखते हो, अपने फैमिली के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, थिंग्स यू लर्न, राइट? सो एक्सेस टू नॉलेज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इंग्लिश। एंड सोशल कॉन्फिडेंस। तो सोशल कॉन्फिडेंस इज माई मोस्ट sort of, I think, is the most important aspect.
ये होना नहीं चाहिए कि इंग्लिश नहीं आती, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है। और जब आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हो ना, तो आप जो करने के कैपेबल हो आप वो भी नहीं करते हो। जैसे अगर आप उतना ही कैपेबल हो यहाँ पे खड़े होकर बात करने के लिए जितना मैं हूँ, मैंने कुछ ऐसे स्पेशल बहुत पढ़ाई करी है या मैंने कुछ ऐसे नहीं है, बट मैं खड़े होकर बात कर पा रही हूँ। मैंने कुछ स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, मेरे को नहीं पता अभी मेरे को नेक्स्ट लाइन क्या बोलनी है, मैं रट के नहीं आई हूँ, लेकिन मैं यहाँ खड़े होकर आपसे बात कर सकती हूँ बिकॉज मेरे को कॉन्फिडेंस है खुद पे। अगर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं होता तो मैं यहाँ खड़ी नहीं होती, राइट? परफॉर्मेंस तो आप बाद में करोगे, अच्छी या बुरी, आप पहले ये डिसाइड कर लेते हो कि मैं खड़ी हूँ कि नहीं खड़ी हूँ। और वो कोई भी चीज़ में होता है, जैसे आपकी अगर क्लास टीचर आपको कुछ बोलती है कि चलो कोई एक लीडर बनो, हम ये एक्टिविटी करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप अपना हाथ नहीं खड़ा करोगे। जो हाथ खड़ा कर लेगा वो चीज़ कर लेगा, और उसको नहीं भी आती होगी तो वो करते करते सीख लेगा, अगली बार वो उससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और उसी को जाके आगे लाइफ में आपका पाथ डिसाइड करता है कि आप क्या करते हो। एंड एवरी पाथ इज फाइन, राइट? आप जो भी करते हो, बट आप उसको, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप अपनी सोसाइटी में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कम्युनिटी में, आपके जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, आपकी टीचर्स हैं, आपकी सिटी है, आप कहीं भी जो करते हो उसमें कॉन्फिडेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड अनफॉर्चुनेटली इट इज लिंक्ड टू इंग्लिश इन आवर सोसाइटी, सो वी शुड डेफिनेटली सॉल्व। लाइक आई हैव हर्ड, हम आई कम टू मैं प्रोडक्ट क्या बना रही हूँ, स्पार्की AI, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। हमारे पास बहुत सारे यूजर्स हमारे टीचर्स हैं, जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, जो स्कूल टीचर्स हैं। तो आप, आई डोंट नो, आपको लगता है क्या कि आपके टीचर्स को भी कॉन्फिडेंस कभी कभी कम पड़ता है? आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, आपके कोई भी बड़े डिग्नेटरी यहाँ पे बैठते हैं ना, उनको भी नर्वसनेस होती है कभी कभी कि मुझे क्या बोलना है, मैं सोच के जाऊँ, कभी कुछ उल्टा सीधा निकल गया, कभी वहाँ पे एकदम से दिमाग में नहीं आया क्या बोलना है, तो सबको होती है। तो हमारे प्रोडक्ट में बहुत सारे टीचर्स सीखते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स सीखते हैं। हमने डॉक्टर से बात की कि आप क्यों इंग्लिश सीख रहे हो, आप तो इतने स्पेशलाइज नॉलेज वाले हो, और हमको पेशेंट से बात करनी है। बहुत सारे हाउसवाइफ सीखते हैं, हमने उनसे पूछा आप क्यों सीखते हो इंग्लिश, वो बोलते हैं कि हम स्कूल में जाते हैं तो पेरेंट टीचर मीटिंग में हमको इंग्लिश नहीं आती तो हम बात नहीं कर पाते। वो अपने बच्चे के टीचर से बोलने में डरते हैं, अपने बच्चे के बारे में वो पूछना चाहते हैं कि मेरा बच्चा कैसा कर रहा है, और वो बोल नहीं पा रहे, वो जाते ही नहीं है। सो मेनी ऑफ देम टोल्ड अस कि मैं मेरे हस्बैंड को भेज देती हूँ, या मैं मेरी बेटे को भेज देती हूँ, व्हाटएवर, बिकॉज मैं टीचर से इंग्लिश में नहीं बात कर सकती, राइट? सो दीज आर नॉट प्लेसेस दैट यू शुड हैव टू स्टेप आउट कि मैं नहीं कर सकती, तो आपको करना है। तो सोशल कॉन्फिडेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स। नाउ वी विल गेट इनटू थोड़ा सा स्पेसिफिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि लैंग्वेज सीखी कैसे जाती है, क्या होता है, राइट? तो 4 तरीके के स्किल्स होते हैं लैंग्वेज में: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ठीक है, आपको सबसे हार्ड क्या लगता है? मैंने लिख ही दिया है शायद, बट आपको क्या सबसे हार्ड लगता है? स्पीकिंग। तो सबको स्पीकिंग हार्ड लगता है, राइट? और राइटिंग? राइटिंग कर लेते हो? राइटिंग कर लेते हो, स्पीकिंग में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अब इसका साइंस क्या है कि पहले तो हमारी जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उनका जो फॉर्मेट है कि आपके एक क्लास में 40-50 लोग हैं, सारे बच्चे साथ में बोल सकते हैं क्या? यस नहीं, सारे बच्चे साथ में सुन सकते हैं। टीचर जब बोल रही होती है, सिखा रही होती है, आप सुन रहे होते हो, या आप जब बुक्स पढ़ते हो, आपकी किताबें हैं, आप रीड कर सकते हो साथ में, आप लिख भी सकते हो, जब एग्जाम देते हो, पेपर लिखते हो, आप लिख लेते हो साथ में। बट सारे बोल सकते हैं क्या? नहीं, किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा, कौन किसकी बात सुन रहा है, जस्ट कैकोफोनी। द स्कूल फॉर्मेट इज नॉट बिल्ट फॉर स्पीकिंग, राइट? टीचर्स कोशिश करती हैं कि एक एक बच्चे को खड़ा करके बोलने की अपॉर्चुनिटी दे, कुछ वाइवा होता है, कुछ ओरल चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे लाइफ में हमको रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है स्पीकिंग से होता है। दूसरा, रीडिंग एंड लिसनिंग इज किसी और की भाषा को रिसीव करना। कोई बोल रहा है, आप उसको सुन के समझ रहे हो या पढ़ के समझ रहे हो, दीज आर पैसिव।
And writing and speaking are active, they are productive skills. आपको खुद की language generate करके बोलना है. तो generating language is a lot harder than understanding language. Brain में जो different parts होते हैं वो भी अलग होते हैं to understand something and to speak something, right? Speaking में दूसरा क्या होता है कि जैसे आपको अगर मैं पूछूं कि आपकी vocabulary कितनी है, आप इंग्लिश में कितने वर्ड्स जानते हो, ऑब्वियसली आपको याद पता नहीं है नंबर, राइट? कुछ लोग, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं बोल नहीं पाती क्योंकि मेरे तो दिमाग में वर्ड्स ही नहीं आता है, मैं बोलना शुरू करती हूँ तो एकदम दिमाग ब्लैंक आउट हो जाता है. उनको लगता है उनको वर्ड्स नहीं आते, तो वो बोलेंगे मेरे को तो 15-20 वर्ड्स आते हैं, आई, यू, हाउ, आर, यू, चेयर, टेबल, इतने आते हैं, उनको ऐसा लगता है. बट जो वो पढ़ते हैं ना, दे एक्चुअली अंडरस्टैंड एटलीस्ट. साउंड में कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं ऊपर जाऊँ क्या? नहीं ना? तो कम से कम 2000-3000 वर्ड्स उनको आते हैं क्योंकि जब वो पढ़ते हैं उनको वो वर्ड समझ आ जाते हैं, पर जब वो बोलते हैं तो उनको वो वर्ड्स अपने दिमाग में नहीं आते, विच इज बिकॉज इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर एक्टिव वोकैबुलरी. आपकी वोकैबुलरी में है, लेकिन एक्टिव वोकैबुलरी से आप समझिए कि आपके पास अगर लाइब्रेरी है, बहुत ऊंची ऊंची कबर्ड्स है, आपने कुछ किताबें ऊपर रख दी तो वो आप निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक है? बट जो आपके हाथ में है वो किताबें आप यूजुअली यूज करते रहते हो, आपको पता है उसमें क्या है, वो आपके दिमाग में फ्रेश है. एक्टिव वोकैबुलरी वैसी होती है, जो आप वोकैबुलरी यूज करते हो वही आपकी एक्टिव वोकैबुलरी में रहती है, वही आपको स्पीकिंग के टाइम याद आती है. और उसको मोर वोकैबुलरी को एक्टिव वोकैबुलरी में लाने का तरीका क्या है? टू स्पीक. देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो सीक्रेट सॉस, कोई भी मैजिक नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ. हेलो, हेलो, आ रही है? मैं पकड़ लेती हूँ. हेलो, हेलो, हाँ. तो उसका एक ही तरीका है एक्टिव प्रैक्टिस, ठीक है? प्रैक्टिस के बिना ये नहीं हो सकता. एंड इट्स अ स्किल लाइक एनी अदर स्किल. नॉलेज और स्किल में क्या फर्क है, किसी को पता है कि व्हाट इज नॉलेज एंड व्हाट इज स्किल? नॉलेज इज स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है? जैसे मेरे को बहुत सारी चीज़ों के बारे में साइंस आता है, ये आता है, वो आता है, लेकिन मेरे को अच्छी रोटी बनाने की स्किल नहीं है. या तो मैं बेलती हूँ तो गोल नहीं बनती, या तो उसको सेकती हूँ तो कभी कड़क हो जाती, कभी पकती नहीं है. वो एक स्किल है, वो नॉलेज नहीं है. मैं किसी को 10 बार देख लूँ रोटी बनाते हुए तो मेरे को उसकी नॉलेज आ जाती है कि ऐसे करना होता है, लेकिन जब तक मैं करके वो परफेक्ट नहीं करती हूँ मेरी रोटी अच्छी नहीं बनती. दैट इज व्हाट अ स्किल इज, राइट? साइकिलिंग इज अ स्किल. आप साइकिलिंग क्लासरूम में सीख सकते हो क्या? नहीं सीख सकते. क्लास अब आपको साइकिल पर बैठ के चलाना ही पड़ेगा, और चलाओगे तो गिरोगे. पहली 4 बार आप गिरोगे. तो ये यहाँ पे पिक्चर में क्या है, वो साइड में 2 व्हील्स हैं, राइट? वो सपोर्ट व्हील्स हैं कि आप ऐसे ना गिरो कि आपका माथा फूट जाए. फिर भी आपको एक बैलेंस करने की अपॉर्चुनिटी मिले कि आप अपने बैलेंस करने की कोशिश तो करो. दैट इज, इट्स अ सेफ स्पेस. इट लेट्स यू प्रैक्टिस समथिंग while keeping you safe, while not putting you in the way of any harm. तो that is how we have to practice English. अगर आपको डर लगता है बोलने का, या आपको लगता है कि मैं मिस्टेक कर दूंगी, तो आप शायद स्टेज पे आके मत बोलो, क्योंकि आपके लिए वो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा. और हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि स्ट्रेस किया जाए, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि स्ट्रेस हटाया जाए. आप जितना स्ट्रेस हटाओगे, जैसे बच्चा जो साइकिल कर रहा है, अगर वो डरता रहे कि अरे मैं तो गिर जाऊँ, मैं तो गिर जाऊँगा, मैं तो गिर जाऊँगा, वो उसको मज़ा ही नहीं आएगा साइकिल करने में, वो कभी साइकिलिंग को एंजॉय नहीं कर पाएगा. सो द पर्सन हैज़ टू फील सेफ, देन दे स्टार्ट एंजॉइंग व्हाट दे आर डूइंग. दैट्स व्हेन यू बिकम एक्चुअली कंफर्टेबल एंड स्ट्रेस फ्री. So we have to learn English with this safe space and support. And what is that safe space and support? I have some ideas for you. These are not exhaustive, but what you need to understand for sure is कि ये बोले बिना नहीं होगा. So you have to speak aloud. Now how to speak aloud? अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके घर में लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो अगर मैं किससे बातें करूँ, और ये मैंने भी बहुत बात किया बचपन में कि
ऐसे ग्रुप बना लेते हैं कि तू और मैं ना चल अपन डिसाइड कर लेते हैं कि अपन इंग्लिश में बात करेंगे आपस में, पर वो होता नहीं है। एक दो दिन किया उसके बाद मुझे छोड़ना कौन करेगा, इट्स डिफिकल्ट राइट, यू डोंट डू इट। सो ट्राई टू स्पीक अलाउड बाय योरसेल्फ, अगर किसी कोई और नहीं है। नाउ हाउ टू स्पीक अलाउड, सो दैट टू थिंग्स आर रिटन, कि टेल स्टोरीज एंड डिस्क्राइब थिंग्स एंड दैट यू कैन डू। लोग क्या कोशिश करते हैं कि टॉपिक ढूंढने की कोशिश करते हैं कि चलो आज मैं ना ये टॉपिक पे बोलूँ, मैं पोल्यूशन पे बोलूँगा, मैं एजुकेशन पे बोलूँगा, तो वो मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो आपके रोज़मर्रा के आपके लाइफ के रिलेटेड नहीं है, तो आप नहीं बोल पाते। अब ये बोलो ना कि आज क्या हुआ, आप अपने फ्रेंड को जाके अगर कहानी सुनाते कि आज मैं कॉलेज गई थी, वहाँ पे ये था, मैं इस फ्रेंड से मिली, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपके दिन में हुआ, आप अपनी दिन की कहानी सुनाओ, अपने आप को सुनाओ, अपनी मम्मी को सुनाओ, अपने फ्रेंड को सुनाओ इंग्लिश में, या आप हर चीज़ को डिस्क्राइब करो। जो भी आप देख रहे हैं, रोड को देख लो, रोड को डिस्क्राइब करो, एक वन ऑरेंज बस इज गोइंग एंड देयर इज अ स्मॉल कार बिहाइंड इट। Whatever you can, right? These are just simple things. Why I am saying do it in your surroundings is because आपको उस चीज़ की vocabulary है। आपको पता है कि कॉलेज में किस कमरे को क्या बोलते हैं, आपको पता है कि यहाँ की एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं, तो वो आपके लिए easy होता है। तो start from a easy step. The second is identify patterns and reuse them. So identify patterns मतलब आप कोई भी चीज़ अगर सुनते हो, कोई मेरे को एक गाना बताएगा, कोई भी एक इंग्लिश लाइन, कोई भी गाने की, कोई हिंदी गाने की इंग्लिश लाइन किसी को आती है, तारे नहीं बताएगी, हाँ हाँ, कोई यहाँ पे हाथ ना किसी I'm unstoppable, I'm a Porsche with no brakes. I'm unstoppable, I'm a Porsche without brakes. I'm a what without brakes? Porsche without brakes. Wow. I'm unstoppable, I'm a Porsche without brakes. ठीक है, तो ये गाना है। What is Porsche? Porsche is a car गाड़ी का नाम है Porsche, ठीक है। Now अब मैं गाना क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वो आपके कहीं ना कहीं खेलने में, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं आता है, तो आपने ये देख सुना लाइन आई एम अनस्टॉपेबल। नाउ हाउ कैन यू यूज दिस पैटर्न? द पैटर्न इज जस्ट आई एम एक्स। नाउ यूज इट इन 10 different ways. Say I am a college student, I am Anushri, I am going to college, I am sleeping, I am feeling hungry, XYZ, that is the pattern. आप कोई भी पैटर्न को उठा के how can you say 5-6 variants of that, so you learn the structure of language. प्रॉब्लम लैंग्वेज लर्नर्स के साथ क्या होती है कि आपको वर्ड्स फिर भी आ जाते हैं, लेकिन आपको वर्ड को स्ट्रक्चर ही नहीं करना आता कि कौन सा वर्ड पहले बोला जाए, उसमें वर्ब क्या लगाया जाए, उसमें 10 चीज़ें हैं बीच में ग्रामर की, राइट। तो वो जो आपको दिक्कत होती है, आप उसको मूवीज से करो, गानों से करो, गाने गाओ, कुछ भी इंग्लिश गाने सुनो, गाने गाओ साथ में। इट्स वेरी वेरी गुड वे टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्रैक्टिस कॉन्वर्सेशन विद अ पार्टनर। कॉन्वर्सेशन सबसे मुश्किल होता है बिकॉज आप रियल टाइम रिस्पॉन्ड करते हो, सामने वाला कुछ बोलता है, आपको झट से सोच लेना है आगे कि जवाब कैसे देना है, कौन से वर्ड्स बोलने हैं, उसको क्या स्ट्रक्चर में लगाना है। आप सुन भी रहे हो साथ में कि सामने वाले का मीनिंग क्या है, आप सोच भी रहे हो आपको क्या बोलना है, एंड दैट्स ऑल रियल टाइम। आपको राइटिंग इसलिए ईजी लगता है क्योंकि राइटिंग में आप सोच सकते हो, 2 वर्ड लिखा, 5 सेकंड रुक गए, फिर 4 वर्ड लिखा, फिर 5 सेकंड रुक गए, कुछ वापस पढ़ के लगा गलत है तो उसको इरेज कर दिया, कट कर दिया। स्पीकिंग में वो नहीं होता। तो प्रैक्टिस कॉन्वर्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू गेट फीडबैक, राइट। आप आपस में अगर बात कर रहे हो, अगर आपकी फ्रेंड को भी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, तो आप एक दूसरे की गलतियाँ पिकअप करोगे, और आप जब गलतियाँ करोगे तो सामने वाला आपको बता नहीं पाएगा कि आपने क्या गलती करी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एज यू आर डूइंग प्रैक्टिस यू ऑल्सो नीड फीडबैक ऑन द मिस्टेक्स यू आर मेकिंग, एंड मिस्टेक्स आर ओके। I think that is, if you had to take one thing away from this session today, please take away that mistakes are okay. There is nothing to worry about making mistakes. Making mistakes is the way to learn. जब साइकिल करता है बच्चा तो गिरता है, जब चलना सीखता है तो वो पहले 2000 बार गिरता है, और जब तक वो 2000 नहीं हो जाते पूरे, वो चलना नहीं शुरू करता। So it's okay to make mistakes. Find yourself a safe environment where you can make those mistakes and you don't feel worried कि मैंने मिस्टेक करी तो क्या, कुछ नहीं। अब मैंने मराठी गलत बोली, आप लोग हंस लिए मेरे ऊपर, तो
कुछ नहीं, ठीक है? So that's what we are going to do. एक मेरे पास वीडियो है यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊंगी, थोड़ा मैं उसके बारे में आपको बता दूँ. सो वी आर बिल्डिंग दिस सोल्यूशन. मैं एक कंपनी चलाती हूँ, स्पार्की AI. हमको वीडियो चलाना होता है. तो स्पार्की AI एक ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं. इट इज़ बिल्ट फॉर स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी. और जो मैं चीज़ें आपको बोल रही हूँ वो उसी प्रिंसिपल्स पे बना हुआ है कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको पहले फेमिलियर चीज़ों के बारे में बात करनी ज़रूरी है. अनफेमिलियर चीज़ों के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है. आपकी लाइफ कौन है, कैसी है, आपके फैमिली में कौन है, आप क्या करते हो, आपकी फेवरेट पिक्चर कौन सी है, आपको खाने में क्या पसंद है, इस टाइप की बातें करनी है पहले, ठीक है? बड़ी बातें हम बाद में करेंगे. सो इट हेल्प्स यू डू ऑल दैट. इट ब्रिंग्स फीडबैक कि आप एग्जैक्टली क्या गलत कर रहे हो, उसका आपको फीडबैक देता है. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट कि आप बोलते बोलते अटक गए, तो अब क्या बोलें, कैसे बोलें, आ नहीं रहा, तो आपको सपोर्ट करता है. अगर सामने से स्पार्की एक फॉक्स है तो आप इससे बात करते हो. बेसिकली स्पार्की अगर कुछ बोलता है तो आपको मे भी शायद समझ ना आए, तो उसमें आप ट्रांसलेट कर सकते हो. आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो, मराठी में ट्रांसलेट कर सकते हो. तो आपको वो बहुत सारे सपोर्ट फीचर्स देता है. एंड इट गिव्स यू अ स्पेस टू डू दिस प्रैक्टिस. And it's easy, it's fun. We try to add games to it, but it's very helpful to become fluent, and it is doable for any age. तो इसको 4-5 साल के बच्चे भी यूज़ करते हैं, इसको 50 साल के कॉलेज प्रोफेसर्स भी यूज़ करते हैं. तो आप जैसी आपकी लाइफ हो, जैसा आपका इंटरेस्ट हो, आप उसके हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो. तो आई शो यू अ शॉर्ट वीडियो, एंड फिर वीडियो के बाद इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चंस एक्सेट्रा आई विल एक्सप्लेन अ लिटिल मोर के बारे में. इंटरव्यू प्रैक्टिस आपको करनी है. मेरे पास एक इंटरव्यू प्रैक्टिस का स्क्रीनशॉट भी है. काफ़ी छोटा है, आप लोग को शायद दिखेगा नहीं, बट बेसिकली इसमें इंटरव्यू प्रैक्टिस में क्या होता है, आप उसको बता सकते हो कि आपको कौन से रोल की इंटरव्यू प्रैक्टिस करनी है. आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो, देन इट आस्क्स यू क्वेश्चन. आप पूरा इंटरव्यू दे सकते हो और उसके बाद वो आपको 2 तरीके का फीडबैक देता है. आपकी लैंग्वेज में क्या गलती हुई, इंग्लिश में ग्रामर वैमर क्या गलत हुआ, वो भी बताएगा, और इंटरव्यू के हिसाब से भी फीडबैक देगा. तो उसमें जैसे अगर सपोज आपने अपना पूरा एक्सपीरियंस या अपनी पूरी कहाँ से डिग्री करी है वो ढंग से नहीं बताया, या अगर आपको पूछा गया कि आप ये जॉब में मैं आपको क्यों हायर करूँ, तो आपको अपने स्ट्रेंथ को या अपने स्किल्स को कैसे हाईलाइट करना है, अगर आपने वो ढंग से नहीं किया तो वो आपको उसका फीडबैक देता है और आपको रिपेयर करके बताता है कि इसको बोलने का बेटर तरीका क्या है. जो नीचे है ना इम्प्रूव वर्जन, तो वो उसमें आपको इम्प्रूव करके भी बताता है. सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन टॉक टू स्पार्की अबाउट. all these things. It has translation support, it has, if you are stuck, it has help कि इसको कैसे बोला जाए. It has a dictionary, तो आप कोई भी word आपको समझ नहीं आए तो आप उसको देख सकते हो, आप उसको सेव कर सकते हो. आप उसको सेव करोगे तो आप उसको बाद में जाके रिवाइज कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम लेटेस्ट न्यूज़. तो उसकी रोज़ की जैसे टॉपिक्स पे बात करना आपको अगर बोरिंग लग रहा है, आपका जो भी इंटरेस्ट है, आपको बॉलीवुड में इंटरेस्ट है, आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो आप अपने इंटरेस्ट में वो दो, तो आपको उसकी न्यूज़ वो देता है. और वो न्यूज़ की स्टोरी से आप सीख सकते हो इंग्लिश. आपने क्रिकेट की न्यूज़ देखी तो अगर क्रिकेट के आर्टिकल में क्या वर्ड्स आ रहे हैं आप वहाँ से सीखो. आप स्पार्की से उस मैच के बारे में डिस्कशन कर लो, राइट. तो इट कीप्स इट इंटरेस्टिंग, इट कीप्स इट रेलेवेंट फॉर यू, and it sort of helps you. I have a QR code, but I don't know आप लोगों के पास फोन्स अभी हैं या बाद में डाउनलोड करना चाहेंगे. मैं यहाँ लगा देती हूँ. आ गया. ये पता नहीं लास्ट स्लाइड आ गई. So दिस इज द QR कोड. अगर कोई डाउनलोड करना चाहे मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या मैडम को दे भी दूंगी, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं स्पार्की AI स्पीक इंग्लिश वेल. एक वो आपको फॉक्स का वहाँ पे आइकन दिखेगा, तो डेफिनेटली ट्राई करना. फ्री है, उसका सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है. अगर आप जैसे 6 महीने का अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहें, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहें, तो इट्स लाइक
100 रुपये 150 रुपये पर मंथ लगता है एंड आई पुट अ 50% डिस्काउंट कोड फॉर RDG कॉलेज. तो आप ये कोड लिख लीजिए RDGC50. अगर आप लोग कोई यूज़ करते हैं, चाहे आपको अगर सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेना हो, अगर आप ट्राई भी करते हैं, जब आप डाउनलोड करते हैं, जो बिगनिंग में आप खोलेंगे ऐप, उसमें पूछेगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, तो आप उसमें RDGC50 जरूर डालिएगा. अगर आप बाद में भी डिसाइड करते हैं कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको 50% मिलेगा. इट्स लाइक 50-60 रुपीज़ पर मंथ में आपको मिलेगा. आप 1 महीने का खरीद सकते हो, 3-6 जैसे भी आपकी इच्छा हो. बट डेफिनेटली ट्राई इट. इट्स फ्री टू ट्राई. आई थिंक इट्स वेरी वेरी यूजफुल. आपके फ्रेंड्स, फैमिली, आपके छोटे भाई बहन अगर उनको हेल्प करता है तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर दिस कोड इवन विद देम. इट्स नॉट कि हमको और किसी को नहीं देना, आप आगे भी दे सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस विद मी, फॉर मी, मैं यहाँ हूँ, प्लीज़ आके आप मुझसे पूछिए. बट आई होप दैट यू टेक दिस एडवाइस टू ब्रेक आउट ऑफ द फियर. लोग क्या करते हैं कि फियर के कारण वो करते ही नहीं है, तो हमें वो नहीं करना है. हमको करना तो है ही इंग्लिश फ्लुएंसी, और बिना डरे करना है. ठीक है. सो आई होप दिस वॉज ऑफ सम यूज टू यू. आई एम हियर. अगर कोई क्वेश्चंस हो, अगर कोई आके बात करना चाहे. एक सेकेंड. हाँ, हम कितने महीने में सीख जाएंगे बोलना? हाँ, स्पार्की से स्पार्की से मेरा, आपको जितनी आती है थोड़ा सा उस पर डिपेंड करता है, बट मेरे हिसाब से 3 से 4 महीने में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है अगर आप रेगुलरली करो. राइट. अगर आप करोगे नहीं तो उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर आप, एंड वी डोंट से कि आप बहुत ज़्यादा लंबी प्रैक्टिस करो, 1-1 घंटा पढ़ाई नहीं है ये. थिंक ऑफ इट एज अ फ्रेंड. एवरीथिंग इन इट इज़ बिल्ट एज अ फ्रेंड. आप 15 मिनट बात करो. आप 15 मिनट कोई भी अपनी सहेली से गप्पे मारते हो ना, 15 मिनट आप स्पार्की से बात करो एटलीस्ट 5-6 टाइम्स एवरी वीक. 3 मंथ्स में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, आप प्लीज़ मुझे लिखना लेटर. ठीक है. 3 to 6 मंथ्स अगर आपकी इंग्लिश और भी कम लेवल पे है तो शायद 4-5 मंथ्स. बट बहुत जल्दी हमने देखा है कि 6-7-8 सेशंस भी लोग करते हैं ना, 6-7 बात करते हैं स्पार्की से. कॉन्फिडेंस सबसे पहले आता है. आप मिस्टेक्स फिर भी करोगे, मिस्टेक्स इमीडिएटली नहीं जाती, बट जो कॉन्फिडेंस होता है ना, आप बोलने लग जाते हो. जैसे आप बोलने लग जाते हो वैसे धीरे धीरे मिस्टेक्स फिर कम हो जाती हैं. ठीक है. ठीक है. दैट वाज ऑल फ्रॉम मी. थैंक यू सो मच. आपने बहुत पेशेंटली बैठ के सुना. Thank you, ma'am. So, dear students, do you have any questions? Please feel free to ask Anushri ma'am. आपको अनुश्री मैम अच्छी लगी या नहीं लगी? Yes. If you feel any kind of strange feeling, unfamiliarity or any kind of like that, ऐसा लगा कि कोई अनजान, कोई अपरिचित आदमी, मतलब स्त्री अपने से बात कर रही है, so my teacher always says, if you are asking question, it means you have listened. If you don't have listened, it means सवाल उसी को पैदा होता है जो उसको सुनने की कोशिश करता है. सवाल उसी के लिए खड़ा होता है ना? So if you want to ask questions, I think you should ask it. Any like that. Yes? Any questions? It means you understand well. It means you understand well. You don't have any kind of query, right? मला सगळं काही समजलेलं आहे, मला काही सगळं काही येतं. हा? Okay, I will not test you further. Thank you very much, ma'am, for this such a practical session. We can say it is very much practical. It is, we can say, we want, if you want anything, like we are now leading, we are facing, this month is, we can say, Shravan. And there is a word imbibe.
And our Bhole Shankar is the example of that imbibe. There is kalash on each ling, and there is always the droplet of water is continuously touch the forehead of that ling, right? It means we are continuously in touch of that knowledge, and that is imbibe. So I am very much hopeful from the session that you have imbibed things what I have to do. At least the question is answered what I have to do. Thank you, ma'am, for such a insightful session. After that, I request Honorable Alok Kumarji Goenka for his special word, for his precious words. Hello friends, I am very happy to see the very good attendance here, and I hope you are carrying some important takeaways from this seminar. And ये मेरी लड़की जो है she is from Akola and is almost primary school तक यहीं पढ़ी है और उसके बाद में बाहर गई और इसने जो डेवलप किया है जो इज डूइंग वेरी वेल एट द मोमेंट और काफ़ी इवन इन अदर कंट्रीज देयर आर सब्सक्राइबर्स फॉर दिस। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। सब कई लोगों को अवेयरनेस भी नहीं होती कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है अपने को सुधारने के लिए। तो आपको इंग्लिश सुधारनी है और कहीं आपको अपना करियर सुधारना है तो इसका ज़रूर एक अवसर आपको मिला है और आपको ये चीज़ मालूम पड़ी है, इसका फायदा लें। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Before ma'am came, I share my views with you that in previous time in past, when I am a student, my teacher said me, if you want to improve your English, you should consult dictionary, you should read newspaper, you should go to library, and all such are, we can say, means of learning English language or any kind of language. But today, there is another guru, there is another friend, and that is technology. If this technology assists you in solving your problem, in facing your lacuna without breaking the, we can say, rules of privacy. I am deliberately using the word privacy because lot many of people or many few people share their mistakes, share their lacunas publicly or with teachers nowadays. So without sharing our mistakes, without exposing our own mind to somebody else, technology Sparky is here to help you to discover yourself, to explore the possibility, the potential which you have in your mind, which is just like a capsule. You have to use this technology and burst that capsule of potential which is inside you. Thank you. So I move on to the last part of our session, that is vote of thanks. On behalf of RDG College and Department of English, I, Dr. Lalit Bhatti, express my sincere thanks, heartfelt thanks to Honorable Ms.